Assalamu alaikum, good morning, namaste, sat sri akal, kevanachin, gali madad, और सबको welcome. Would like to welcome everyone. This is Zishan Isaac, running for Commissioner, Precinct 4 in Fort Bend County. And every Sunday from 10 a.m. to 11 a.m., I get a chance to speak with you directly with some key issues. And today's topic is accountability, and we'll discuss the CAD issue. And if you haven't visited our campaign website, then please go to www.zishanisaac.com. And people who are joined here through social media, it's very easy because you can see it on your screens, which is being broadcasted live through multi-streaming channels like YouTube Live, Facebook Live, and Twitter Live. And you can see it's zishanisaac.com. And people who are just tuned in through my dear friends Rehan Siddiqui's radio station Ham FM on 106.1 FM in Houston, Greater Houston area, and in Austin by tuning in to 107.9 FM in Austin, then I welcome you all as well. And in few minutes, in fact, after 50, 20 minutes, you are more than welcome to even call in to the studio and just have any kind of Q&A, any kind of question that you may have about this race, because this is Zishan Isaac running for Commissioner Precinct 4 in Fort Bend County. And for folks who are listening to me through the airwaves, I would like to tell you that you can visit our campaign website, which is the address is www.zishanisaac.com. It's very simple, easy to remember. ZEESHANISAAC, zishanisaac.com. And today I would like to discuss about accountability. As any leader, and just to give you a little background, because I come from the background of corporate experience, and from corporate America, I worked for American Express. I was a director at American Express. I managed a $250 million budget. I have worked for Honeywell and KBR, and I'm still with corporate America, and I would like to use my corporate experience to make our local government work for us. So I know as a leader, it's ingrained in me, and through various type of corporate training and working with the tremendous talent and people from all different walks of life and background, accountability as a leader is so important because the buck stops with you. And especially when I decided to run for Commissioner Precinct 4 in Fort Bend County, which was announced well before Ramadan in one of the community event with the Pakistan American Congress, where Congresswoman Sheila Jackson Lee was there. And we have our own communities, very strong leader, Mr. Tahir Javed, who got the Medal of Honor from the government of Pakistan. So in that function, some of our friends and my, I would say some of them are my mentors as well, they announced that Zishan is running for Commissioner Precinct 4. I also talked with everyone there. And then on April 12th, I announced publicly through social media to the entire, I would say, community of Fort Bend County and all different communities through social media. And I announced publicly on April 12th, which was also the date when Ramadan was arrived, and it was at the eve of Ramadan, that this is Zishan Isaac and I'm running for Commissioner Precinct 4 in Fort Bend County. So again, it's so important that we level with people, we speak directly, and we make sure that people and a leader, they are all on the same page. And this is where accountability plays a very critical role in terms of understanding that accountability is so important. And the incumbent, I would like to appreciate and applaud that the incumbent bought body cams, because body cams, they protect our deputies, our law enforcement officers, and they also protect our members of the society, and that's what body cams do. So they are important. So I applaud that the incumbent purchased those body cams. However, he purchased those through CAD funds. The responsible thing to do would have been to purchase those body cams by
going to state funding as well as accessing federal funding when those fundings are available. And this is so important because when we are trying to even do the right thing and buy those body cams. However, the responsible thing to do would have been to go to state funding and federal funding. And that's the right thing to do. And that's where accountability comes into the picture because we have to be proactive. We have to make sure that when we access funds properly. Now, having the experience of managing $250 million budget, I recognize, I understand there are so many different priorities and at the same time, key missions and mission statements and different project sponsorships. At the same time, what pool and what resources of funds need to be used and where and for what purposes, and then how you track and follow the money trail. So these are very important aspects of budget management. And there are so many other areas as well where you make sure that whoever is leading those projects and that particular program, because there could be a multiple of projects under that program, or whoever is the portfolio manager. But as a budget manager, it becomes your accountability and responsibility to make sure that that budget is being managed properly, effectively, and we are also using those resources properly. And this is where my corporate experience will play a critical role in ensuring that, first of all, the buck stops with the leader, and at the same time, we also make sure that the community is also aware of these type of issues, and there is transparency. And at the same time, the CAD funds issue is definitely an issue where we see that responsible thing to do would have been to access those funds through state funding and federal funding. So accountability is so important. People who have just joined me, I would like to welcome you all and also tell you guys that the studio's number is 1-800-444-1061. I would like to open the lines as well after a few minutes. But let me just give you a recap in terms of the last week and what I have been doing. So I'm meeting a lot of people, wonderful people from all different cultures and faiths. And I have also met with the business community. And there was this Fort Bend Business Outreach Committee's inaugural event that happened here in Fort Bend County, in fact, in Precinct 4. And I would like to thank and applaud Commissioner Precinct 2, Grady Prestige, for attending and sharing vital information with everyone and everyone who basically was in attendance. It was an honor to listen to the business issues and challenges from all different business leaders, because there were folks, business owners who were in the restaurant business and paper business. The person who was in the paper business has been impacted negatively by COVID as well, because all of his clients, they have gone online and working virtually. So everything has been done electronically. So his business has been impacted because of COVID as well, because everything is now being done virtually. So I was listening to all these different business owners, business professionals. There were some in apartment housing and real estate and contract servicing, and then consulting and process improvement, auditing, tax services, and IT. So I learned a lot of key insights from them about businesses in Fort Bend. And at the same time, I've managed a $250 million budget. Therefore, I recognize and understand business issues, challenges, and I know that these business issues and challenges, they can be turned into opportunities with innovative thought leadership. And that's what I bring to the table as well. And when our businesses are strong, our families are strong, because strong businesses, they make our families strong as well. And I also have a plan for infrastructure, which I will discuss it later. But all I can tell you, at least in this short time frame today, that the IT aspect of infrastructure is also important, and that is also in my plan, because infrastructure also have these type of areas. For example, the roads and bridges and parks, and IT is also an infrastructure when we talk about broadband and ensuring that
internet access to underserved communities are being provided to all the communities. So I will put Fort Bend first and improving our quality of life together. So that is where please check out my plan at zishanisaac.com. And this is our campaign, folks. And I would like to be very, very open and candid with you because when I'm talking to all these business leaders, and these are my precinct where I reside as well. I've been residing in Fort Bend with my family members and with my extended family for almost 20 years. We're connected with Fort Bend, but at the same time, in the precinct 4, I've been there for 10 years. And my son, we have a teenage boy whom we have raised together, and he basically went to elementary school, middle school, and high school. So I know Fort Bend issues as well. And then throughout the past several weeks, especially when I made this public, and it was made as a public announcement on April 12th that I'm running for Commissioner Precinct 4. I've been talking to so many wonderful people from all different backgrounds, and I'm learning a lot because when as a leader, if you're not listening and if you're not getting your ears full and the good and the bad, hopefully there's no ugly, but then you know what those issues are at the grassroots level. And that's what I intend to do, that I will continue to listen. And then, like I said, I'm running as a Democrat, but I will govern and lead as a Texan and as a true American. So when you go to the primaries next year, because a lot of people have reached out to me that, hey, Zishan, when is going to be the election? We would like to vote for you. So this is great. I'm excited. I love it because there is a lot of excitement out there. But at the same time, we need to continue that momentum. So I tell them that, hey, the election would be next year in February, March timeframe, and continue to visit our website because that's where you'll get our official information and the key information that you will need. And the election is all about the primary election because that's where we have to win. If we win the primary, then that's the first step. So we cannot take this lightly. So yes, there is some time, but if you ask me, time is running very fast, at least for me, because I'm meeting with all these wonderful individuals. Yesterday, I went to ICC, the Indian Culture Center, met wonderful people there, and the ICC president Jasmeet Singh and Gaurav, and so many wonderful people, Harry, Bobby Singh, and obviously so many folks who were there, and I cannot take everyone's names because I may forget someone's name, so you know who you are. But I met them. I met even Mrs. USA, Mrs. India USA, and she was there, Shruti, and met all these wonderful people. And it was the food drive and mask drive, and also PCR COVID testing, COVID PCR testing and vaccinations. And our mayor, Sylvester Turner, he was there. And then our Fort Bend County Judge, KP George, and so many other talented officials and folks, especially from our community, they were there. So I really admire that how all our different communities, they are trying to help each other. And this is that time, especially in this COVID era, that we have to help each other out, regardless of our various political opinions or various differences in terms of our cultures or faiths or whatever we believe in. At the end of the day, we are all humans. Yes, there will be some policy issues, but that's where leadership comes into the picture. And that's where accountability comes into the picture, because a leader should know what those areas are in terms of the focus for priorities and where we're going to keep the focus. And at the same time, we continue to work together as a team. And how you bring people together, that's where the corporate experience comes into the picture, because people who have worked in corporate America, they know how you have to work with all different
personalities and people who may agree with you. That's great, and there are a lot of people who may not agree with you. And having managed a $250 million budget at American Express when I was a director at American Express, and then I've worked for Honeywell and KBR, so I know and I recognize and understand those dynamics, those nuances, and at the same time how to bring everyone together. And accountability is so important. So that's basically some of the key areas that I really wanted to discuss and also share with you. And momentarily, I will be taking some phone calls if you have issues, and especially when I say questions, because we'll let the issues part in our one-on-one conversations as well. But then again, yes, if there are some concerns or issues, please share with me, because that's how we work together and learn from each other. So yesterday, just let me tell you a little bit about yesterday. So at the ICC, I saw a very well organized event, and like I said, Jasmeeta Singh, the president, I met her, Gaurav Javeri, and then Mrs. India USA, Shruti Bekal, Saeed Pathan, he's the secretary of Indian Muslims Association of Greater Houston, Falguni Gandhi, Hemant Kumar Patel, Kranti, Dinesh Purohit, Parul Fernandez, Uma Mantarwadi, Harry, Bobby Singh, so many more people. You know who you are, so I don't want to miss anyone, but I was so excited and so thrilled to see people coming together. And when people come together, that's what diversity is all about. Because diversity is always our strength. And I've said it before, and I will say it again, and that is that Democratic Party is a big tent party. Diversity and inclusiveness are entrenched in our party. It's not based on political expediency. And now I would like to switch over to Urdu and Hindi. So people who are listening to me at this radio station as well, of my dear friend Rehan Siddiqui's Hum FM, and people who are watching me through social media, I would like to switch over to my mother tongue Urdu, and I will use obviously some words from Hindi as well. So please continue to stay with me and continue to have this discussion and conversation with me, if you will. I would greatly appreciate it. So, Khatin Hazrat, again, आपको मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, केमनाचिन, याली मदद. और सबको मैं यही कहूँगा कि उम्मीद है कि जो लोग रोजे रख रहे हैं उनके रमज़ान जो हैं बड़े अच्छे गुजर रहे होंगे, और जो लोग जो हैं और जो लोग ख़ास तौर पर इन्वॉल्व्ड हैं यहाँ पर, ख़ास जिस चीज़ को मैं कहूँगा कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, तो उनके लिए भी यही मेरा मैसेज है कि हमारे साथ आप आएँ. जो वेबसाइट है ख़ास तौर पर zishan.isaac.com, इसको विजिट करें. और जब आप देखेंगे कि जो इश्यूज़ हैं उनको भी आप देखें, और मुझसे सवालात लोग कर रहे हैं. और साथ में जो आज का मेन इशू है, मुद्दा है, वो है कैट फंड्स, कि किस तरह जो मौजूदा शख्स हैं अभी ऑफिस में, मैं उनको सराहता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ. मुझे खुशी भी है कि उन्होंने बॉडी कैम्स जो हैं वो खरीदे. लेकिन वो बॉडी कैम्स जो उन्होंने खरीदे, जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बॉडी कैम्स जो आपको पता है, लॉ एनफोर्समेंट जो डेप्यूटीज हैं उनके इधर चेस्ट पे लगे होते हैं, और वो प्रोटेक्ट करते हैं. जो बॉडी कैम्स रिकॉर्ड हो रही होती है चीज़ें, और जो ऑफिसर्स हैं, डेप्यूटीज, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, और जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं. तो यहाँ तक तो अच्छी चीज़ है. लेकिन कैट फंड्स इस्तेमाल हुए. कैट फंड्स इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि जब आपके पास स्टेट फंडिंग और फेडरल फंडिंग मौजूद है, तो जब स्टेट फंडिंग और फेडरल फंडिंग है, तो फिर कैट फंड्स ये एक जिम्मेदाराना फैसला नहीं था. इसी वजह से फिर हमारे जो टैक्स वगैरह वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक जो पूल आपने रखा है, जो रिसोर्सेज का पूल है, जो एक कह लें कि जैसे हमने एक बजट रखा, और वो बजट में जिस चीज़ के लिए वो बजट है उस पर इस्तेमाल नहीं हो रहे पैसे, और भले अच्छे काम के लिए हो रहे हैं इस्तेमाल, जब हम नहीं करते तो इसी से फिर मुश्किलात पैदा होती हैं बजट मैनेज करने में. तो ये अकाउंटेबिलिटी की बात है. यानी
जो हमारा एक कह लें फर्ज है, जो हमारी एक जिम्मेदारी है कि एज एज ए लीडर, और क्योंकि मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर चुका हूँ, $250 मिलियन, $250 मिलियन का बजट जो है मैंने मैनेज किया। हनीवेल और केबीआर जैसी कंपनीज जो हैं उसमें जो है अल्लाह का शुक्र है और ऊपर वाले का एहसान है कर में कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और अहम जो रोल्स थे, पोजीशंस थे, उन पे काम किया। तो अब 21 साल हो गए कॉर्पोरेट अमेरिका में, तो उस एक्सपीरियंस को मैं लेकर आ रहा हूँ लोकल गवर्नमेंट की जानिब, ताकि हम अपने लोकल गवर्नमेंट को जो है वो इस काबिल बनाएं, इतना और अच्छा बनाएं कि वो हमारे लिए काम करे। हमारे बच्चे यहीं पर पैदा हो रहे हैं, यहीं पर हमारी फैमिलीज जो है ग्रो कर रही हैं, मजीद इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। तो मुझे मालूम है कि हमारी अपनी कम्युनिटी के क्या इश्यूज हैं, और जब उन इश्यूज को हम देखेंगे और उन पे बात करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी जो है किस तरीके से मजीद आगे बढ़ती है, और हम शाना बशाना यानी कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी शोल्डर टू शोल्डर। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज वी आर ऑल अमेरिकन, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। और स्पेशली जो ये कोविड एरा आया और ये अभी भी चल रहा है, और इसमें बड़ी दिक्कतें और मुश्किलात और चैलेंजेस और फिर अपॉर्चुनिटीज भी आ रही। तो जो लीडर है उसका ये काम होता है कि किस तरीके से उन इश्यूज और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदले, ना कि और लोगों के लिए मुश्किलात हो। तो अब लोकल लेवल ही पर ये काम होंगे तो ही हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी जनाब। और इसी वजह से ये एक बड़ा मुश्किल और अहम फैसला था जो फिर मैंने अपनी फैमिली के साथ बैठ के किया। और काफी सालों से लोग जो है वो मुझे कह रहे थे कि भाई जीशान इसाक, आप जो है इलेक्शन में क्यों नहीं हिस्सा लेते और लड़े आप। और मैं लोगों को तो इतने अरसे से जो मुझे जानते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मैंने पहले भी शायद आपको बताया, और अगर आपको नहीं मालूम तो ये कि 27 साल पहले जो है मैं यहाँ पर तालीम पढ़ाई के लिए आया। मेरी अमेरिकन ड्रीम थी है बचपन से कि मैं अमेरिका आऊंगा और यहीं पर ही अपनी बैचलर्स जो है वो करूंगा। और यहाँ पर जब बैचलर्स किया, मैं कराची पाकिस्तान में पैदा हुआ, वहां पर मैं सेंट पीटर्स हाई स्कूल में पढ़ा, फिर आदम जी साइंस कॉलेज कराची, जिसको आप समझिए कि बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही मुश्किल से एडमिशन वहाँ पर होता है, जैसे कि आईआईटी इंडिया में है, या फिर यहाँ पर कोलंबिया हो गई, हार्वर्ड, येल यूनिवर्सिटीज जो आईवी लीग स्कूल्स हैं। तो आदम जी साइंस कॉलेज से, जिसको हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहते हैं, या हाई स्कूल है 12th ग्रेड, वो कंप्लीट करके फिर यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से जब अमेरिका आया पढ़ने के लिए, तो आई गॉट माय बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। उसके बाद जो है मैंने फिर मास्टर्स किया ई बिजनेस में, एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ई बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स से। और फिर इन तमाम चीज़ों में ये जो कह लीजिए कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स, और फिर यूनिवर्सिटी में ही ऑब्वियसली मैं जॉब भी कर रहा था आईटी डिपार्टमेंट, और जो जो हमारे यूनिवर्सिटी ही के अंदर पार्ट टाइम भी और फुल टाइम भी। और साथ में फिर ग्रेजुएशन से पहले ही मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में ही बल्कि जॉब ऑफर भी, वहाँ पर भी मैंने तकरीबन 6-7 महीने जो है एज ए फुल टाइम जॉब की। और फिर कॉर्पोरेट अमेरिका, प्राइवेट कॉर्पोरेट अमेरिका जो है उसमें फिर कदम रखा, क्योंकि आई वांटेड टू गेट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, क्योंकि एकेडमिक एक्सपीरियंस और जो कह लीजिए नॉन प्रॉफिट एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होता है, और जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है कंप्लीटली डिफरेंट। और फिर अमेरिकन एक्सप्रेस में एज ए डायरेक्टर, $250 मिलियन का बजट, हनीवेल के बीआर जो मैंने आपको बताया, और अभी भी मैं मुंसलिक हूँ कॉर्पोरेट अमेरिका से। तो अब ये सारा एक्सपीरियंस जो कॉर्पोरेट अमेरिका का है, इसको लेकर, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, 20 साल हो गए हैं, इस जून को इंशाल्लाह 21 साल हो जाएंगे, 21 years married to a remarkable wife, और together we have raised a wonderful teenage boy, जो हमारा एक बेटा है, साहबजादे हैं। और वो खुद एलिमेंट्री स्कूल, और फिर मिडिल स्कूल, और फिर उसके बाद जो हाई स्कूल है वो यहीं से फोर्ट बेंड आईएसडी ही से उन्होंने किया। तो ये यानी वो बातें हैं, आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी है कि जब हम में से कोई भी पब्लिक ऑफिस के लिए इरादा करता है, या लड़ रहा हो या लड़ रही हो इलेक्शन, तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई कौन लोग हैं, इनको हम वेट करें। और फिर इसी चीज को जब मैं इतने अरसे से, जो लोग मुझे जानते हैं 27 साल से, और यूनिवर्सिटी के जमाने में भी और उसके बाद भी, कि हमेशा लोगों को 9/11 से पहले से ये बात मैं कहता हुआ आया हूँ पब्लिकली कि भाई हमें पॉलिटिकली इंगेज होना है, हमने लोगों में बताना है कि हम अमेरिकन हैं और हम यहाँ का जो सियासी प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें इन्वॉल्व हो। और ये बात
इतने अरसे से मैं कहता आया और फिर वही जिसे कहते हैं ना कि कह तो रहे हैं लेकिन खुद नहीं कर रहे अमल। और फिर फाइनली जब इतने अरसे से लोग जो हैं हमारी अपनी कम्युनिटी के और फिर कुछ हमारे अपने डेमोक्रेटिक पार्टी की भी, उन्होंने भी मुझे अप्रोच किया और पुश करते रहा, फिर फाइनली फैमिली के साथ बैठकर ये मुश्किल और अहम फैसला था लेकिन जिम्मेदारी वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैसला था कि भाई अब इलेक्शन लड़ने का इरादा किया, जो फिर मैंने आपको बताया 12 अप्रैल, और उससे पहले रमदान से पहले ये पाकिस्तान अमेरिकन कांग्रेस में अनाउंस कर दिया गया था इसको पब्लिकली। और फिर 12 अप्रैल को सोशल मीडिया के थ्रू तमाम लोगों में ये जंगल की आग की तरह बात फैल गई कि अब इरादा कर लिया है और मैं जीशान इसहाक कमिश्नर प्रीसिंक्ट 4 का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। तो ये 12 अप्रैल को पब्लिकली, यानी उससे पहले भी काफी लोगों को पता चल गया था और काफी अहम शख्सियात जो कांग्रेस वुमन शीला जैक्सन ली जिस फंक्शन में आई थी और ताहिर जावेद साहब भी वहां पे थे, जिनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, ही इज अमेरिकन, इज पाकिस्तानी अमेरिकन, और वो अमेरिकन कम्युनिटीज और पाकिस्तानी कम्युनिटीज को मिलाना चाह रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हमारे कितने लोग हैं जो और डिफरेंट कम्युनिटीज से, इंडियन कम्युनिटी हो, बांग्लादेशी कम्युनिटी हो, ऑल अमेरिकन। तो उनको जब तमगा इम्तियाज, जिसको मेडल ऑफ ऑनर कहते हैं, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको दिया उनकी खिदमात पर, उनकी इस आउटरीच पर, तो वहां पर कांग्रेस वुमन शीला जैक्सन ली भी थी और वहां पर जनाब कुछ लोगों ने हमारे जो है ऐलान भी किया पब्लिकली रमदान से पहले। और फिर 12 अप्रैल को रमदान की आमद पर, इस खुशी, इस बाबरकत महीने की आमद पर, मैंने भी फिर पब्लिकली जो है लोगों को ये बात बताई कि मैंने इरादा कर लिया है, जो उससे पहले पता ही था लेकिन लोगों को जो है बता दिया गया मजीद कि मैं अब इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। और वो दिन है, आज के दिन है, रेस्ट इज हिस्ट्री, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी रिसेंटली मैं जो बिजनेस आउटरीच कमेटी है उसके इनॉग्रल इवेंट में गया, वहां पर मैं बहुत सराहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि प्रीसिंक्ट 2 के जो हमारे कमिश्नर हैं ग्रेडी प्रेस्टेज, वो वहां पर थे, उनसे मुलाकात हुई, उन्हें बड़ी अहम और बहुत ही ज़रूरी जो इंफॉर्मेशन है वो दी। और किस तरह अभी जो 157 मिलियन के करीब अप्रोक्सीमेटली जो खासतौर पर अमेरिकन रेस्क्यू प्लान 2021 है वो फोर्ट बेंड काउंटी को दिया गया। तो बड़ी यानी अहम बातें हैं जो बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस लीडर्स के साथ शेयर की, जिसमें पेपर बिजनेस के लोग थे, जो साथ में रेस्टोरेंट ओनर, रियल एस्टेट, अपार्टमेंट हाउसिंग के, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसिंग के, कंसल्टिंग, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ऑडिटिंग, टैक्स सर्विसेज और आईटी, और उन लोगों से जो बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी, उनसे मेरी जो है गुफ्तगू हुई, बात हुई, और जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको मैंने सुना। और क्योंकि जो 250 मिलियन $250 मिलियन का बजट का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे मालूम है कि जो बिजनेस इश्यूज, चैलेंजेस क्या है, और फिर लोगों से और मजीद इंसाइट्स लेते हुए किस तरह इन इश्यूज और चैलेंजेस को अब हमने इनोवेटिव थॉट लीडरशिप के साथ, सही लीडरशिप के साथ जो है वो तब्दील करना है अपॉर्चुनिटीज की तरफ। और ये वो वक्त है कि लोकल गवर्नमेंट पर हम, यानी जब हमारा इतमाद होगा और साथ में हम अकाउंटेबिलिटी के साथ, जैसे कैट फंड्स का इशू मैंने आज जिक्र किया कि वो एक अच्छी बात थी कि भाई बॉडी कैम्स खरीदे गए, लेकिन वो बॉडी कैम्स अगर स्टेट फंडिंग या फेडरल फंडिंग से लिए जाते जो अवेलेबल है, तो फिर कैट फंड्स जो है उनका कैट ही की तरफ इस्तेमाल होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, कैट जो आपको मालूम, सेंट्रल अप्रेजल डिस्ट्रिक्ट और कम्युनिटी असिस्टेंस डिस्ट्रिक्ट, इसमें दो डिफरेंट पूल्स भी आते हैं। लेकिन सेंट्रल अप्रेजल डिस्ट्रिक्ट का क्या काम है, यही कि जनाब जो अप्रेजल्स हों घरों की, रियल एस्टेट, कमर्शियल एस्टेट, और जो अप्रेज होती हैं हमारी प्रॉपर्टीज, उनके लिए इस्तेमाल किया जाए, या वो फंड जो और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। तो ये वो अकाउंटेबिलिटी होती है जो फिर एक लीडर जो होता है, जो कमिश्नर का एक बहुत अहम जो रोल है वो है बजट मैनेजमेंट। और बजट क्योंकि कमिश्नर के इख्तियार में होता है, उसके पास होता है, तो उसके पास डिस्क्रेशन भी होती है कि वो कहाँ पर सही प्रायोरिटीज हैं, उस पर जो है पैसे जो है खर्च किए जाए। तो अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि अब $157 मिलियन करीब जो अमेरिकन रेस्क्यू एक्ट जो प्रेसिडेंट बाइडेन और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने पास किया है कांग्रेस के थ्रू, हाउस और सेनेट की जानिब से, और ये फंड्स डायरेक्टली दिए गए हैं काउंटीज को, तो $157 मिलियन फोर्ट बेंड काउंटी को मिले, तो अब वो सही तरीके से इस्तेमाल हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ, और ये एकदम तो नहीं खर्च हो जाएंगे। तो ये बड़ी अहम चीज है कि अब हम नेक्स्ट ईयर जब प्राइमरी में जाएं तो हम अपने लोगों को मुत्तहिद होकर, यानी कि आपका किसी भी पॉलिटिकल सोच से ताल्लुक हो, किसी भी कल्चर फेथ से ताल्लुक हो, हमने अपने लोगों को सपोर्ट करना है। और मैं हूँ जीशान इसाक, आपका अपना, इतने अरसे से जो लोग मीडिया से भी वाबस्ता है मुझे जानते हैं। और ये जो एक्टिविज्म भी है ये मेरी, यानी जब
कह लें कि स्कूल यूनिवर्सिटी के ज़माने से चल रही है एक्टिविज्म, कि किस तरह लोगों को हमने मिलाना है, जो असल इश्यूज हैं हमारे उनकी तरफ तवज्जो दिलानी है। और जैसे कि मुस्लिम बैन हुआ, वहाँ पर मैं एयरपोर्ट पे गया और मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहाँ पे आपको तस्वीरें भी नजर आएंगी कि जब मुस्लिम बैन, और वो सबका बैन हो गया था एक तरीके से, सिर्फ हम उसको मुस्लिम बैन तो कहते हैं लेकिन ज्यादातर तो मुस्लिम कंट्रीज ही उसमें थी जो बैन हुई। और ये वो एक्टिविज्म होती है कि हम सिर्फ खामोशी से नहीं बैठ सकते इस मुल्क के अंदर कि जनाब ये हमारा मुल्क है, और हमारे मुल्क में जब हमारी ही मुल्क के अंदर इस तरीके की अगर पॉलिसीज या ऐसे इश्यूज हों जिनके ऊपर हम खामोश हो जाए, तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो बहुत खूबसूरत वो कॉल है कि आवर लाइव्स बिगिन टू एंड द डे वी बिकम साइलेंट अबाउट थिंग्स दैट मैटर। यानी हमारी जिंदगी उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन हम उन इश्यूज पर, उन मुद्दा पे बात ही ना करें जो मैटर करती हैं, जो अहम, तो बड़ी अहम चीज। तो ये अकाउंटेबिलिटी आपको बताया, बिजनेसेस के बारे में बताया, जो बिजनेस आउटरीच हमारी फोर्थ बैंड की, और तमाम इनॉग्रल कमेटी को जो है मैं खराज तहसीन और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये इस तरीके की चीज़ें फोर्थ बैंड में हो रही, बहुत अच्छे काम, एटलीस्ट ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और साथ में अब जो अहम चीज़ और वो ये कि किस तरीके से हमने मिलकर जो है वो काम करना है। अब मिलकर काम करने की एग्जाम्पल अभी कल ही जो है मैंने यहाँ पर जो हमारी अपनी कम्युनिटी में इंडियन कल्चर सेंटर है उसको विजिट किया, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत अच्छी जो चीज़ वहाँ पर मुझे नजर आई कि सब ने मिल के जो है काम कर रहे थे सब, और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। और वहाँ पर जो आईसीसी प्रेसिडेंट हैं जसमीता सिंह, और फिर गौरव जवेरी, ही वाज द इवेंट चेयर, और मिसेस इंडिया यूएसए से मुलाकात हुई श्रुति बेकल, और सईद पठान सेक्रेटरी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स एसोसिएशन ग्रेटर ह्यूस्टन से मुलाकात हुई, फलगनी पाठक, फलगनी गांधी, फलगनी पाठक तो एक आई थिंक सिंगर भी हैं फलगनी गांधी, अपॉलॉजीज, हेमंत कुमार पटेल, क्रांति, दिनेश पुरोहित, पारुल फर्नांडिस, उमा मंत्रवादी, और हैरी, बॉबी सिंह, और सो मेनी मोर पीपल। और फिर वहां पर कुछ इलेक्टेड ऑफिशियल्स जिनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो वहां पर आए, जिसमें मेयर सिल्वेस्टर टर्नर से मुलाकात हुई, काउंटी जज हमारे अपने फोर्ट बेंड काउंटी के पी जॉर्ज, सिटी अटर्नी अर्तुरो मिशेल, सिटी ऑफ स्टैफोर्ड काउंसिल मेंबर एलिस चैन, और फिर काउंसिल जो इंडियन कॉन्सुलेट है यहीं ह्यूस्टन में, तो काउंसिल अशोक कुमार थे फ्रॉम कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, जो काउंसिल जनरल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, और ये फूड ड्राइव थी, और मैस ड्राइव, और पीसीआर कोविड टेस्टिंग, और वैक्सीनेशन। तो ये आपको कुछ इवेंट्स जो हैं जहाँ मैंने जो है लोगों से मुलाकातें की, और इश्यूज लोगों के, और पता चल रहा है कि किस तरीके से वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। क्योंकि अब ये कोविड जो आ गया है, इसको यानी हमारी जिंदगियां जो हैं इसने तब्दील करके रख दी, और अब बहुत जरूरी हो गया कि हम लोकल लेवल पर मेहनत करें। क्योंकि अगर हम लोकल लेवल पर मेहनत नहीं करेंगे और सही काम नहीं होगा, और उसके लिए लोकल गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल होता है, तो लोकल गवर्नमेंट जो है वही फिर इस वक्त जो आप फंड्स आ रहे हैं, ग्रांट्स भी मिलती हैं, फिर फॉरगिवनेस लोन्स भी हैं जो माफ कर दिए जाएंगे, और साथ में जहाँ पे असिस्टेंस मिलनी चाहिए लोगों को, क्योंकि इतनी अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज भी हैं जिनको सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन की नहीं हुई, और फिर ऊपर से जो हमारे अपने मसाइल हैं, हमारे इश्यूज हैं, तो वो कौन यानी कि उनके ऊपर आवाज उठाएगा, कौन हमारे इन इश्यूज को समझेगा। इसलिए मैंने इलेक्शन में लड़ने का हिस्सा करने का इरादा किया और हिस्सा ले रहा हूँ, और ये नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में होगी प्राइमरी। लेकिन आपने वेबसाइट जो है वो चेक करनी है, वहाँ पे जाएं और मेरे साथ कनेक्ट हों। यू कैन ज्वाइन एज ए वॉलंटियर एंड बिकम पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। जो बहुत लोग इतने लोगों से जैसे कल भी मुलाकात हुई, एंड पीपल आर सो हैप्पी एंड थ्रिल्ड कि भाई हमारे अपनी कम्युनिटी से लोग जो हैं वो अब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और मैं खुद जो है इस बात पे बड़ा खुश हूँ और मुतमईन हूँ कि जिस तरीके से अभी तक कैंपेन जा रही है, और इस तरह और हम इस मोमेंटम को जिस तरीके से इस तेजी के साथ जबरदस्त चल रहा है, इसको और हमने बढ़ाना है, क्योंकि people from all different walks of life, cultures and faiths are part of this campaign। और ये सिर्फ मैं अकेला कोई इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये हमारा इलेक्शन है। और यही वो बात है जो हमें मालूम है कि जो लोग हमारे अंदर डिविजन डालना चाहते हैं वो फिर मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं। बट लेट्स टॉक पॉजिटिव, लेट्स टॉक ऑन आवर फ्यूचर, हाउ आई विल हेल्प, and together how we will help each other to improve our quality of life in Fort Bend, or I will put Fort Bend first।
दिस इज जीशान इसाक, रनिंग फॉर कमिश्नर प्रीसिंक्ट 4 इन फोर्ट बेंड काउंटी। और जो वेबसाइट है वो है zishanisaac.com, इसको आप विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ पे कंट्रीब्यूशन का लिंक भी है, यू कैन डोनेट, बिकॉज कोई भी कैंपेन हो बगैर फंड्स के नहीं चल सकती। वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं खुद देख रहा हूँ कि कितना अहम है इस मुल्क के अंदर पैसा का इस्तेमाल, खासतौर पर सियासत में। ये आसान नहीं है कि इलेक्शन जो है वो लड़ा जाए, और इसमें काफी पैसे जो हैं वो दरकार होते हैं। पैसा अहम है, इंपॉर्टेंट है, पैसा सब कुछ नहीं है। ऐसी भी कैंपेन है जो बहुत कम पैसों से जो है जीती गई, फिर भी पैसे जो है लगे, यानी डॉलर्स जो है वो खर्च होते हैं। तो ये डॉलर्स जो हैं इनको भी आप डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ वी विल विन टुगेदर एज वन कम्युनिटी, और मुत्तहिद होकर यूनिटी ऑफ पर्पस के साथ। और ये एज ए डेमोक्रेट मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन जो हमारे इश्यूज हैं वो ट्रांसेंड करते हैं, भले आप रिपब्लिकन हो, इंडिपेंडेंट हो, या ग्रीन पार्टी या लिबर्टेरियन पार्टी या किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक। क्योंकि हम तो सब समझते हैं कि भाई दो ही पार्टीज हैं, हालांकि और भी हैं, लेकिन इन अमेरिका इट्स अ टू पार्टी सिस्टम, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी भी, डेमोक्रेट पार्टी भी है। तो हमारे लोगों को ये भी अभी से बावर करना है उनको, जो मैं बता भी रहा हूँ, कि जब नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में इलेक्शन होंगे तो आप सबको बताना है ये कि डेमोक्रेटिक बैलेट आप लें। क्योंकि अक्सर लोग जो है वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो फिर कहते हैं अरे भाई हम तो आपको वोट देना चाहते, बैलेट पे नजर ही नहीं आया। और गलतियां होती हैं, और हमारे लोग मासूम भी हैं, और एजुकेशन की बहुत जरूरत है, जो मैं और आप एक दूसरे को एजुकेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत अहम चीज है कि हम अभी से देख लें। और लोकल इलेक्शन, याद रखिए, लोकल इलेक्शन है ये। मैं कांग्रेस का इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा हूँ, ये मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा हूँ। जो नेशनल कैंपेन्स और नेशनल कैंपेन जब इन्वॉल्व होती हैं तो एक अलग किस्म की फिजा हो जाती है। तो हमने यहाँ पर मुत्तहिद होकर यूनिटी ऑफ पर्पस के साथ इलेक्शन लड़ना, और डिविजन नहीं आनी देनी है। हमने अपने सफों में जर्रा बराबर भी डिविजन नहीं आने देनी है। दिस विल बी अ कैंपेन ऑफ इश्यूज, दिस विल बी अ कैंपेन ऑफ पॉजिटिविटी, दिस विल बी अ कैंपेन ऑफ आवर फ्यूचर, ऑफ आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर। और ये वो अब बात हो रही है, या मैं वो बातें कर रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं भाई ये तो अब जीशान नेता वाली बातें कर रहा है। हो सकता है मैं जो है अब लोगों से जो सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ, तो आपको अगर लग रहा हो ऐसा, पर मैं आप ही में से हूँ, और मैं आप ही जैसा हूँ, क्योंकि पहली दफा तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो इसमें अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे मालूम है कि आप लोग माफ भी कर देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे लोगों का दिल भी बड़ा है, क्योंकि हम जो है बहुत सी बातें अपने दिलों में छुपाए रखते हैं। और ये मुझे पता है, यही हम जब अपने लोग जब हों हमारे, तो हमें ये बातें पता होंगी ना। दूसरे लोगों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बाज़ दफा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बाज़ दफा कम्युनिकेशन बैरियर होता है। कितने लोगों से जब कल मेरी मुलाकात हुई आईसीसी में, इंडियन कल्चर सेंटर में, कुछ लोगों ने कहा भाई हम अंग्रेजी ही नहीं बोलते थे जब अमेरिका आए। देखें, ये हैं एग्जाम्पल स्टोरीज। एक साहब थे, इस सीनियर सिटीजन या उसके करीब है, और कहने लगे यहीं आकर उन्होंने अंग्रेजी जो है सीखी, और कह रहे हैं अभी भी उनको मुश्किल होती है, दिक्कत होती है। कितने लोग हैं हमारी अपनी फैमिली में, अगर हम देखें, सब थोड़ी कोई फ्लुएंटली इंग्लिश जो है बोल रहे हैं। तो अब आप यहाँ देखें, जो हमारी हिस्पैनिक कम्युनिटी है, उनके लिए स्पेनिश में होते हैं तमाम इंटरप्रेटर्स। तो हमें लोकल गवर्नमेंट पे भी अब ये चीज़ें देखनी होंगी, क्योंकि जो नेशनल लेवल, फेडरल लेवल पे अगर हम देखें तो उसमें तो अक्सर हमें इंटरप्रेटर्स और ये सब मिल जाते हैं, लेकिन अब हमने इन चीज़ों को बड़ा संजीदगी से लेना। तो आज का जो इशू, जो मुद्दा है, वो अकाउंटेबिलिटी, कैट फंड्स का मैंने आपको जिक्र किया कि किस तरीके से जब सही पूल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हो तो हमें उनकी तरफ जाना चाहिए। तो जो मौजूदा इनकम्बेंट हैं जो ऑफिस में, उनको मैं सराहता हूँ। अच्छी बात है कि उन्होंने बॉडी कैम्स खरीदे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स यानी डेपुटीज के लिए, और वो प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत देते हैं, खासतौर पर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को, डेपुटीज को और मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को। लेकिन एक जिम्मेदारी वाला फैसला जो है ये होता कि उन कैट फंड्स के बजाय स्टेट फंडिंग और फेडरल फंडिंग जो है उससे ये परचेस किए जाते बॉडी कैम्प्स, और ये बात होती है अकाउंटेबिलिटी की। तो ये आपके साथ मैंने सोचा कि इन इश्यूज को भी अब हम डिस्कस करें, क्योंकि ये इश्यूज हैं, इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैं नहीं चाहता कि एकदम एक ही प्रोग्राम में ये बता दिए जाएं, क्योंकि सो मच इन्फॉर्मेशन आउट देयर। और लोगों से मिलकर मजीद जो इश्यूज और चैलेंजेस, जैसे बिजनेस कम्युनिटी का मैंने जिक्र किया, तो वो इश्यूज और चैलेंजेस को किस तरह अपॉर्चुनिटीज के अंदर तब्दील करना है, वो एक्सपीरियंस जो है कॉर्पोरेट अमेरिका का 21 साल काम करते हुए हो गया है। डायरेक्टर रहा मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में, $250 मिलियन का बजट मैनेज किया, फिर हनीवेल, केबीआर जैसी कंपनीज में। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह के
अच्छे ओहदों पर और इम्पोर्टेंट रोल जो हैं, सारी रोल इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन ये कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा हो तो फिर वो एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए लोकल गवर्नमेंट को हमारे लिए काम करे बहुत जरूरी, इफेक्टिवली एफिशिएंटली ये चीज है। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम में पहले ये कहा था कि लाइंस में ओपन कर रहा हूँ, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी लोगों ने कुछ कॉल्स की थी उससे पहले भी, तो जरूर आप कॉल कर सकते हैं 1-800-444-1061। इफ यू वाचिंग थ्रू social media, multi-streaming channels, YouTube, Facebook Live, and Twitter Live, YouTube Live. Then you can also call, pick up your phone, pick up your cell phone, what have you, and just call 1-800-444-1061. और यहाँ पर इस स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ जो रेहान सिद्दीकी का है 24/7। और ये मैं यहाँ पर उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ रेहान सिद्दीकी का कि ये पब्लिक सर्विस है कि भाई हम अपनी कम्युनिटी को इश्यूज के बारे में बताएं। अभी एक खुशखबरी यहाँ पर जो है मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ईद उल फितर और ईद उल अधा जो ऑप्शनल हॉलीडेज हैं ये डेजिग्नेट कर दी। जी हाँ, डेजिग्नेट हो गई हैं एट स्टेट लेजिस्लेचर जो टेक्सास की है। और September 1 जो इफेक्टिव September 1 यानी 1 सितंबर जो आएगी तो फिर ये इफेक्टिव हो जाएगी, यानी फिर ये कानून जो है वो बन के लागू हो जाएगा, यानी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। पास हो गया है ये, लेकिन ये कि September 1 से ही हो जाएगा। तो सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिस इज ईशान इसाक, मैं हूँ ईशान इसाक और कमिश्नर प्रीसिंक्ट 4 के लिए रन कर रहा हूँ। और मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को, तमाम टेक्सन्स को, and everyone on this great news, on this wonderful news। मुझे बड़ी खुशी है माशाल्लाह, बहैसियत मुसलमान मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह गुड फ्राइडे है और दूसरी जूइश हॉलीडेज हैं, इसी तरह ये भी अब ऑप्शनल डेजिग्नेटेड हो गई है हॉलीडे। ईद उल फितर की जो रमज़ान के बाद आती है ईद, और फिर ईद उल अधा जिसको हम बड़ी कुर्बानी कुर्बानी भी कहते हैं, और उधिया अरबी में, और वो फिर आती है हज जिस महीने में होता है। तो बहुत खुशी है और इसमें बहुत लोग बिहाइंड द सीन और कुछ लोग फ्रंट लाइन में रहते हुए इसमें काम किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं कि ये जो पास हुआ है इसमें 122 लॉ मेकर्स हैं टेक्सास के जिन्होंने इस फेवर में इस बिल के पास में दिया, जो अनऑफिशियल जो रिजल्ट लेजिस्लेटिव सेशन 87 ये बता बिल नंबर हाउस बिल 1231 स्टेट लेजिस्लेचर टेक्सास। 12 थे जिन्होंने नेज, यानी उन्होंने इसमें जो है रिकमेंडेशन जो है यानी जो थी इस बिल को, उसमें उन्होंने यानी कि नहीं में दिया, नहीं में दिया। तो 122 काफी मेजोरिटी जो है उसमें ये पास हुआ। और ये बिल जो है ये अब इंटाइटल एन एक्ट, और ये पढ़ भी दूं, relating to the designation of Eid al-Fitr and Eid al-Adha as optional holidays be it enacted by the legislature of the state of Texas, section 1 section 662.003 C government code is amended to read as follows. C, an optional holiday, quote unquote, includes only the days on which Rosh Hashanah, Yom Kippur, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, or Good Friday falls. Section 2, this act takes effect September 1st, 2021. So congratulations to everyone, to the entire Muslim community in Texas and throughout America, Muslim Americans and throughout the world, and to all communities, and to Texans. So congratulations to everyone. और बहुत खुशी है कि ये जो बिल है ये पास हो गया। ऑप्शनल हॉलीडेज ईद उल फितर, ईद उल अधा, जिस तरह मैंने आपको बताया, रोश हशना और गुड फ्राइडे, और इन ये जैसे ऑप्शनल हॉलीडेज हैं, तो इस तरह टेक्सास में ये भी हो जाएगी, हो गई है। और September 1 से योम किपुर जैसे, जिस तरह ये जूइश हॉलीडेज हैं, क्रिश्चियन हॉलीडे, क्योंकि देखिए जो इस्लाम जो है दिस इज द अब्राहमिक फेथ, इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म एंड इस्लाम, और ये एक जो अब्राहमिक फेथ, मोनोथिस्टिक जो फेथ हैं उनमें है। एंड वी रिस्पेक्ट
all different cultures and faiths. So important कि जब हम people from all different cultures and faiths come together, diversity is always our strength. और इसमें फिर जब हम मिलकर काम करते हैं तो उसका मजा ही अलग होता है. And that's how we grow together. That's how यूनिटी ऑफ पर्पस के साथ जो है हमारी कम्युनिटीज स्ट्रांग होती हैं. जब कम्युनिटीज स्ट्रांग होती हैं तो फैमिलीज स्ट्रांग होती हैं, और फैमिली जब स्ट्रांग होती हैं तो एक नेबरहुड स्ट्रांग होता है. एक नेबरहुड स्ट्रांग होता है तो एक जो टाउन है छोटा वो स्ट्रांग होता है. एक टाउन छोटा स्ट्रांग होता है तो वो सिटी जो है वो पर स्ट्रांग होता है. फिर वो एक सिटी स्ट्रांग हो रहा है तो इस तरह और दूसरे सिटीज स्ट्रांग होते होते कंट्री जो है वो स्ट्रांग. तो ये बड़ी अहम चीजें, ये नॉलेज और विजडम के साथ मिलकर यूनिटी ऑफ पर्पस के साथ हमने काम करना. तो दिस इज जीशान इसाक, रनिंग फॉर कमिश्नर प्रीसिंक्ट 4 इन फोर्ट बेंड काउंटी. और स्टूडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है 1-800-444-1061 इस पे आप कॉल कर सकते हैं, कर सकती हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं. और काफी लोग जो हैं वो फिर ऑफ एयर अभी बाज़ दफा पूछते हैं. और विजिट कीजिए जो वेबसाइट है हमारी कैंपेन की, zishanisaac.com, ZEESHANISAAC.com, zishanisaac.com. और 12 अप्रैल को जब ये पब्लिकली अनाउंस किया मैंने, पाकिस्तान अमेरिकन कांग्रेस में, उससे पहले अनाउंस हो गया था, तो जब से लेके अब तक जो नेक तमन्नाएं, दुआएं और लोगों की दिल से जो खुशी मैं देख रहा हूँ, बड़ी मुझे उस पर खुशी है. और मैं यही कहता हूँ कि अब जैसे मेरे पास कोई 24/7 रेडियो स्टेशन नहीं है, लेकिन आई हैव अ विजन. और दिस इज थैंक्स टू माय डियर फ्रेंड रियान सिद्दीकी के उनको जैसे ही पता चला, ही वाज सो हैप्पी एंड थ्रिल्ड, दैट इज सो काइंड ऑफ हिम. और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कहा जीशान ये पब्लिक सर्विस और आप जो है लोगों को बताएं, अपडेट दें. और जब ये मौका मुझे मिला तो बस उसके बाद से आपके साथ यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जो 106.1 FM ग्रेटर ह्यूस्टन, और फिर ऑस्टिन में भी सुना जा रहा है तो 107.1 107.9 FM ऑस्टिन, और थ्रू सोशल मीडिया, यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव एंड ट्विटर लाइव, और zishanisaac.com ये हमारी वेबसाइट है. तो कोई भी आपके जहन में सवाल हो, कोई भी, और अभी अगर नहीं है तो आगे भी आप ईमेल भी कर सकते हैं, तो तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी zishanisaac.com, ZEESHAN या ZEESHAN जो ब्रिटिश स्कूल सिस्टम से पढ़े, और ISAAC.com, isaac.com. इसको आप जो है नोट कर लें, क्योंकि that's where you will get the latest information, up to date information. और मैं यही कहूँगा कि जब हम मिलकर यूनिटी ऑफ पर्पस के साथ काम करते हैं तो फिर उसका मजा अलग होता है, और हरकत में बरकत है. और फिर जब हम मुत्तहिद होते हैं, इत्तेहाद होता है, तो इत्तेहाद में बरकत है. ये बड़ी अहम बात है, और ये वो टाइम टेस्टेड, जैसे लोग अक्सर कहते हैं ना कि जी बाबा जी ने ये कहा या गुरु जी ने ये कहा. अक्सर आज सोशल मीडिया के ज़माने में तो हमें ये चीज़ें आती भी रहती हैं, व्हाट्सएप वगैरह पर मुझे भी आती रहती हैं. तो कितनी अहम बातें ये कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनको भी हमें रिमाइंड कराते रहे, क्योंकि ये डिफरेंट टाइम है सर. ये टाइम इसलिए डिफरेंट हुआ हुआ इस वक्त के, इस वक्त हमें अब कोविड की वजह से बड़ी यानी मुश्किल भी देखने को मिल रही है. और ख़ास तौर पर जो इंडिया में इस वक्त है सिचुएशन, मेरी दुआ है, माय थॉट्स एंड प्रेयर्स गो आउट टू द पीपल ऑफ इंडिया. वहाँ पर आप जो भी आपकी एनजीओज हों, जिनको भी आप ट्रस्ट वर्दी समझते हैं, उनको आप ज़रूर डोनेट करें और हेल्प करें लोगों की, ताकि ये जो पैंडेमिक है ये एकदम इस तरह खत्म नहीं हो जाएगा. ये आप डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से पूछिए, मैं लोगों से मालूम कर रहा हूँ. मैं अलार्मिस्ट होकर बात नहीं करना चाह रहा, मैं किसी को डराना नहीं चाह रहा. यहाँ पर मैं बिल्कुल लेवल होकर आपसे बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि अगर ये मुख्तलिफ मुल्कों में फैलता रहा तो फिर इसका खत्म होने में मुश्किल होगी बड़ी. और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेंट्स जिसको हम कहते हैं, म्यूटेशंस उसकी हो रही है. तो वो म्यूटेशंस हो रही हैं, स्ट्रेन्स बन रहे हैं, वेरिएंट्स इनको कहते हैं, डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं. और ये डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं उनके अभी नहीं है वैक्सीन, और इसमें चंद वेरिएंट्स हैं. कौन कौन से? साउथ अफ्रीका में एक है, उसका नहीं, फिर ब्राजील का है, फिर यूके का एक है, सुना है, फिर न्यूयॉर्क में एक है, और साथ में सैन डिएगो के अंदर है. ये डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, दे हैव बिन टेलिंग दिस, और ये आपको
मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, मुझे डायरेक्टली डॉक्टर्स एक्सपर्ट जो क्रेडिबल है उन्होंने बताई है। और अब ये इंडिया में जो स्ट्रेन है ये भी बिल्कुल एक ऐसा वेरिएंट है, इसका भी अभी वैक्सीन नहीं बना। तो इसलिए हमारी जो ट्रैवल एडवाइजरी वेबसाइट है जो स्टेट डिपार्टमेंट की है, प्लीज उसको आप देखें, जाएं। हमारे कितने लोग हैं, उनके रिश्तेदार, दोस्त, खासतौर पर एक्सटेंडेड फैमिली, उनके पेरेंट्स जो है रहते हैं। तो अब हमें ये बड़ा देखना होगा क्योंकि क्वारंटीन जो है उसकी बड़ी अहम चीजें आ रही हैं। फिर लोग जो है वो जब जा रहे हैं तो आप एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। वी आर ऑल वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल, लेकिन हमें लोगों को बताना भी है क्योंकि अक्सर हमारे लोग जो है, जब नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज पावर। तो किस तरीके से हमने इसको रोकना है, मिलकर। सो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। आप देखिए कि आप ह्यूमैनिटी में अगर सब मिलकर नहीं इसके ऊपर काम करेंगे तो फिर ये कुछ ममालिक में चलता रहेगा, फिर वो कंट्रीज जो हैं खुदा न खास्ता आइसोलेट होना ना शुरू हो जाए, क्योंकि फिर यूरोप में, अमेरिका में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो उन ममालिक के ऊपर पाबंदियां लगा सकती हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इट्स बेसिकली हैपनिंग नाउ। तो इसलिए हमने इन चीज़ों को लोगों को बताना है। आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें और ये मेरा और आपका काम है कि हम सही इंफॉर्मेशन लेकर लोगों को सही बताएं। और वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगाए हैं वो लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन जो हैं वो हमारे अंदर ये जो कोविड है और ये जो खासतौर पर कोरोना वायरस, ये एक वायरस है, इसकी जो खास प्रॉब्लम्स इससे जो क्रिएट होती है, और इससे अगर कोई बीमार होगा तो वो इतना शदीद बीमार नहीं होगा कि उसको फिर हॉस्पिटल जाना पड़े, या फिर वो बीमार ही नहीं होगा और इतना कि बिल्कुल खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर पे उसको जाना पड़े। तो इसलिए जो वैक्सीन हैं वो आप लगवाइए, अपने डॉक्टर्स जो हैं उनसे पूछिए, और इसके ऊपर हमने काम करना है। और जो दूसरे ममालिक हैं उनकी भी हमें अब हेल्प करनी होगी, क्योंकि दिस इज हाउ वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। सो दिस इज जीशान निसार, रनिंग फॉर कमिश्नर प्रीसिंक्ट 4 इन फोर्ट बेन काउंटी। जो वेबसाइट है हमारी कैंपेन की zishanisaac.com, इसको आप विजिट करें। इसमें जो हमारे लोकल इश्यूज हैं उनके ऊपर बात हो रही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि लोग बड़ी नेक तमन्नाओं के साथ, इतनी दुआओं के साथ और इतनी खुशी के साथ जो है मेरी इस कैंपेन को जब से अनाउंस हुई है, ये 12 अप्रैल को जब ये अनाउंस किया था पब्लिकली, उससे पहले पाकिस्तान अमेरिकन कांग्रेस में ये अनाउंस हो गया था रमजान से पहले पब्लिकली। तो जब से लेकर अब तक, और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ डिफरेंट कम्युनिटी इवेंट्स में, और सब जगहों लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, बिजनेस कम्युनिटी हो, पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड बैकग्राउंड्स, तो एक इंकरेजमेंट के साथ मुबारकबाद भी मिल रही है। और मैं सबको ये कहूँगा कि बहुत खुशी है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यूनिटी ऑफ पर्पस, मुत्तहिद होकर हमने लोगों को बताना है प्रीसिंक्ट 4 का ये इलेक्शन है, फोर्ट बेंड का, और जो मोहब्बतें आ रही हैं वो दुनिया भर से आ रही हैं, और इवन शहर से और हमारे शहर के बाहर से और अमेरिका से, और खासतौर पर प्रीसिंक्ट 4 से, क्योंकि ये इलेक्शन जिसमें मैं हिस्सा ले रहा हूँ उसमें वही वोट डाल सकते हैं या डाल सकती है जो प्रीसिंक्ट 4 में इलेक्शन में वोट डालने के एलिजिबल। और अगर आप रजिस्टर्ड वोटर नहीं है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको zishanisaac.com पे मिल जाएगी, यू कैन रजिस्टर टू वोट। और क्योंकि ये प्राइमरी का इलेक्शन होगा पहले, क्योंकि जब प्राइमरी का इलेक्शन होता है तो फिर उसके बाद ही आप जनरल इलेक्शन में जाते हैं, ये नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में होगा। तो अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन टाइम इज गोइंग वेरी फास्ट। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप रजिस्टर कीजिए, और वो इन्फॉर्मेशन भी आपको zishanisaac.com पे मिल जाएगी। और आप प्रीसिंक्ट 4 में रहते हैं, ये इसका आसान जियोग्राफिकली तरीका समझने का ये है कि 59 के दोनों तरफ स्टैफर्ड तक, क्योंकि स्टैफर्ड का भी कुछ हिस्सा जो है वो आता है प्रीसिंक्ट 4 में, हाईवे 99 ग्रैंड पार्कवे जो है आलियाना की तरफ, उसकी भी दोनों तरफ हाईवे 99। अभी देखिए सारे जो मैं इलाके बता रहा हूँ हमारे सारे अपने देसी इलाके, और फिर ऊपर से रिवर स्टोन, टेलफेयर, न्यू टेरिटोरी, और फिर कुछ मिजोरी सिटी का एरिया। ये नॉर्थ ईस्ट साइड है फोर्ट बेन काउंटी की प्रीसिंक्ट 4। और इससे भी आसान तरीके में आपको बता दूं, अभी रिसेंटली जो हमने तारीख रकम की, जो हिस्टोरिक मोमेंट हुआ और हिस्ट्री मेकिंग के फर्स्ट मुस्लिम अमेरिकन एंड पाकिस्तानी अमेरिकन कांस्टेबल नबील शाइक जो इलेक्ट हुए, ये जिस प्रीसिंक्ट से इलेक्ट हुए उसी ही प्रीसिंक्ट से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कमिश्नर का। तो ये हमारी देखिए प्रीसिंक्ट है, और इसी प्रीसिंक्ट में हमने अपने लोगों को सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। और डिवाइड ही नहीं होना है, ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि प्राइमरी ओपन होती है, याद रखिए, इट्स एन ओपन प्राइमरी। और ओपन प्राइमरी में क्या होता है कि आप किसी भी पार्टी में जाके वोट दे सकते हैं,
लेकिन अगर आप किसी पार्टी में चले गए और उस पार्टी में आपका कैंडिडेट नहीं है तो फिर आप दे ही नहीं सके वोट। तो मैं जो इलेक्शन रन कर रहा हूँ, जो लड़ रहा हूँ, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से रन कर रहा हूँ। तो जो आपको मेरा नाम नजर आएगा बैलेट पे नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में जो प्राइमरी होगी, तो वो डेमोक्रेटिक बैलेट आपने लेना। और डेमोक्रेटिक बैलेट ही का पूछना है। बहुत सारी पोजीशंस हैं, बहुत सारे ओहदे हैं जनाब, जिसपे हमारे लोगों को जो है अब सोचना चाहिए कि हम लोकली, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, फेडरल लेवल पे इलेक्शन लड़ें और अच्छे कैंडिडेट जो है, अपने क्वालिफाइड कैंडिडेट जो लेकर आए। मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मैं डायरेक्टर था अमेरिकन एक्सप्रेस में। $250 मिलियन, $250 मिलियन का बजट मैंने मैनेज किया। केबीआर, हनीवेल, जो हमारी फॉर्च्यून 100 कंपनीज हैं, उसमें भी काम किया। फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स और कंपनीज के लिए काम किया। और कर रहा हूँ कॉर्पोरेट अमेरिका में 21 साल का एक्सपीरियंस। और उस कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस को अब मैं लेकर आना चाह रहा हूँ और ला रहा हूँ लोकल गवर्नमेंट की तरफ, ताकि हमारी लोकल गवर्नमेंट हमारे लिए काम करे और हम अपने इश्यूज को समझें और फिर मिलकर काम करें। और जो आज का इशू और जो टॉपिक और जो मुद्दा था कि अकाउंटेबिलिटी, उसके ऊपर मैंने बात की। कैट फंड्स की बात की कि बॉडी कैम्स जो इनकम्बेंट है उन्होंने खरीदे, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है उन्होंने खरीदे, क्योंकि बॉडी कैम्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को, डेप्यूटीज को और मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को। लेकिन जिम्मेदारी का फैसला ये होता कि स्टेट फंडिंग और फेडरल फंडिंग जो है वो उससे परचेज किए जाते बॉडी कैप्स। तो अकाउंटेबिलिटी एज ए लीडर और जो मैनेजमेंट का मेरा एक्सपीरियंस है, $250 मिलियन बजट जो मैंने मैनेज किया, उसमें जो मैंने सीखा है और जो हमें सिखाया गया है एक्सपर्ट्स और टॉप नॉच प्रोफेशनल्स ने, वो यही कि अकाउंटेबिलिटी कितनी अहम होती है। और फिर जो लीडर है उसका यही काम होता है कि सबको साथ लेके चलो। और यूनिटी ऑफ पर्पस के साथ जब हम आगे चलते हैं तो फिर मैं और आप मिलकर वी विल इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फूड बैंक। और जो मैंने जो कहा है और अभी भी ये कह रहा हूँ कि आई विल पुट फूड बैंक फर्स्ट। तो इसके साथ अब रैप अप का टाइम है। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से और इतने प्यार से जो है मुझे सुना। और नेक्स्ट संडे आप लोगों से मुलाकात होगी। उससे पहले मैं आपको इन एडवांस ईद मुबारक पेश करता हूँ। बहुत खुशी है क्योंकि एक तो मुबारकबाद मैंने आपको दी, खासतौर पर जो बिल पास हुआ ईद उल फितर और ईद उल अजहा का, जो सितंबर 1 से इफेक्टिव हो जाएगा, कि ऑप्शनल डेजिग्नेटेड ऑप्शनल हॉलीडेज हैं अब ये, जैसे रोश हशना है और योम किपुर है और गुड फ्राइडे। तो अब ईद उल फितर और ईद उल अजहा जो है उनको भी रिकग्नाइज कर लिया गया है ऑप्शनल हॉलीडेज के तौर पर इधर स्टेट ऑफ टेक्सास में। और साथ में ईद उल फितर की इन एडवांस मुबारकबाद। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखिए। इसके साथ दीजिए साइनिंग ऑफ। दिस इज ईशान इसाक, रनिंग फॉर कमिश्नर प्रीसिंक्ट 4 इन फोर्ट बेथ काउंटी।